ਕਾਹਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੰਦਗੀ ਨਾ ਬਦਬੋਈ ਨਾ, ਦਿਮਾਗ ਪਾਟ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੋਏ ਬਹਿਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦਾ ਛਿੜਕਾਓ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਗਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦਿਮਾਗ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਦਾਸਾ ਦਾਸ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਣਾ, ਜੀ ਆਇਆਂ, ਸਤਿਕਾਰ, ਆਸਨ ਦੇਣਾ, ਜਲ ਪਾਣੀ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮਿੱਠੇ ਵਚਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲਈ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਔਰ ਆਏ ਹੋਏ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਵੀ ਕਰਨ। ਇਹ ਦਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣ, ਆਈ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਲਟੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਕਾਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ। ਦਾਸਾ ਭਾਵ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਦਾਸਾ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਸੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਪਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਔਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਭਾਈ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ABC ਲਿਖਦਾ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੇ ਜੋ ਡਿਗਰੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ। ABC ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ, ਆਪ ਸਮਰੱਥ ਔਰ ਸਰਬੱਗ ਸਨ। ਦਾਸਾ ਭਾਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਆਪ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ। ਸੰਗਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਭੇਟਾ ਰੱਖ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਬੜੀ ਪਾਰਖੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਤ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਗਲ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਮਾ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਭਾਰ ਚੜਾਇਆ। ਨਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਦਾਸਾ ਭਾਵ। ਹੁਣ ਉਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਲਾਈਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਦਾਸਾ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ
ਆਵਾਜਾਈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਹਨ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੁੱਛਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਬਦ ਕਲਾਮੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਸ਼ਰਧਕ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਜਾਗਰੂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਵਾਕਵੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੌਤਕ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਚੋਜ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾਉਣੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਸਰੋਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਧਾਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਲੈ ਲਓ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ, ਗੁਰੂ की संगत प्रति, गुरु के आस्त्रां शास्त्रां प्रति, गुरु की जितनी भी गुरमत मर्यादा उसके प्रति श्रद्धा बनानी, ये दासां सेवादारां दे हत्थ है। दास धन धन बाबा वीर सिंह जी महाराज निरंगाबाद वाले भी बचन किया सी, हे गुरमुख प्यारिओ दासां सेवादारां, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ। ਜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਸਾ ਭਾਵ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਪ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਪਾਇਆ ਬਖਸ਼ਦਾਰ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ। ਦਾਸਾ ਭਾਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਾਸ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਆਏਗੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਸ ਘੋਲ ਕਮਾਇਆ, ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦਾ ਗਰੀਬੀ ਆ ਗਿਆ। ਦਾਸਾ ਭਾਵ ਆ ਜਾਏ, ਨਿਰਮਾਣ ਭਾਵ, ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਾ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਵਾਲਾ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀ ਹੈ। ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋੜਾ। ਹਾਂ ਸੰਮਲ ਥਕੀ ਜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਔਰਾਂ ਬੋਲਣਾ ਜਾਣੇ, ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨੇ ਔਗਣ ਕੋ ਨਾ ਚਤਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਔਗਣ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਂ ਵਾਲੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੁੰਝ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਆ ਮਿਲੇਗਾ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਗ ਕਊਆ, ਜਗ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ, ਕਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਬਗਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਦਾਰਥਾਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਹੰਸ ਵਾਂਗ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਖੇੜਨਾ, ਦੁੱਧ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਤਿਆਗਣਾ, ਸਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ, ਅਸਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਭਦਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਤ ਵਸਤੂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਠਾ ਪਰਪੱਕਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ। ਦਾਸਾ ਭਾਵ ਦਾਸ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਡੇਰਾ ਸੰਤਗੜ੍ਹ ਹਰਖੋਵਾਲ ਕੋਈ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਲਾਂਗਰੀ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ, ਆਪ ਛਕ ਛਕਾ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ। ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਟਰੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਲਾਂਗਰੀ ਆਮ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ।
महापुरुष उठे, देखा सब सुते है। आई संगत दे दासा भाव विच कोई नहीं खलोता। महापुरुषां दे गड़वई सन बाबा गजन सिंह जी, बहुत सुलझे हुए पुरुष सन। महापुरुषां दे इशारे ते काम करते सी। एक हुंदा बैनत, एक हुंदा सैनत। बैनत हुंदा बचन बोल के कहना ये कर ला वो कर ला। इशारा हुंदा इशारे नाल ही करना, बोलण की लोड़ ही नहीं। जिहड़े सियाणे सुलझे हुए सेवादार हैं, महापुरुषों की हजूरी सेवा च रहिंदे हैं, वो मौन धार लेंदे। भाव वचन तो करते ही नहीं, बाणी पढ़ते, सिमरन करते, सेवा करी जाते, हाथ पाँव से काम कर कीर्त निरंजन नाल इशारियां की इतना उन्होंने सोझी समर्थ पाई आ जाती है। सो महापुरुषों ने बुलाया, आप आटा गुन्निया, उन्होंने झंडा झोकण वास्ते लाता, आप ही पेड़े पीटे, आप ही पेड़े टुंडे, आप ही बेलने नाल बेले लोह ते पाए, आप ही पलटन की क्रिया, राड़न की, चोपड़न की सारी क्रिया लंगर सर्जन लग गया। जल लांगरी भी पाई उठे, दौड़े आए, महाराज सानू माफी दो। कहन लगे भाई तुसीं हाले दासा भाव नहीं तारिया। स्वामी का काम है, रोटी खा ली सौ गया, घर चुंदा अपना पेट भर लिया, बच्चे परिवार का भर लिया, सौ गया। गुरु का भी उत्ते जिहा नहीं। 3 घंटियां बजाइयां सन, 1 घंटी ते दूई 30 ते नहीं आए। ये सेवा का मौका धन श्री गुरु अर्जन देव जी ने जड़े भाई तवियां तवियां ते बैठे है, ये तवी आज गुरु के लंगर की लोह बन गई है। देग भी चुगड़े वो दाले का स्थान बन गई है। देग तो कोई एवं थोड़ी चल रही है, कुरबानी नाल चल रही चीज़ां। महाराज ने सानू सेवा बख्श दी। वो हुण क्षमा मंगते, कहते भाई तुसीं जाओ आराम फरमाओ। ज्वाला सिंह ने ते गुरु नानक दे लंगर का झंडा कढ़िया। इसने तो हम गुरु नानक का पहरेदार बनना है, गुरु नानक दे घर की सेवा भाई करनी है। महापुरुषों ने फरमाया कि जिथे निशान साहब लाया जाए, जिथे तक निशान दिया उहदे दुआले उत्थे तक संगत बह जाए, भोजन वालों अनकारी ना हो। गज के बोलो। असीं अज कई बारी बड़े उच्चे उच्चे निशान ला लें, आए नूं पानी नहीं पुछते, जी आया नहीं करते, क्योंकि साढ़े चों दासा भाव चले गया, सेवक वाला भाव खत्म हो गया। हुक्म करने की आदत पै गई, दुए मंगल करनी, ये नहीं किया वो नहीं किया, दूसरे नूं कहना तू खुद ही कर ला, ਉਹਦਾ गले नहीं रह गई। सो साध संगत जी इस वचन द्वारा हदायत की, फिर सदा ਲਈ विधान बनाया कि लंगर कदे भी लांगरी तो बिना सुनना नहीं होगा। रात में भी एक लांगरी उत्थे पऊगा। ये गुरु नानक का सदा वर्त है, हर वेले भोजन मिलना चाहिए। गज के बोलो। दासा भाव गुरु अमरदास जी दास होने से किस तरह गागर ढोई पाई। बाबा मंझ साहब दास होने से किस तरह सेवा की। भाई विधि चंद दास होने सन, भाई वैलो दास होने सन, किवें सेवा की। जो कहते स्वामी का वो दासा बन गया,
दास के स्वामी रल के एक स्वरूप हो जाते, पिता पूत रल किन्नी सांझ। अज सिख है भाई लैना, कल गुरु बन गया। जड़ा दास है उही गुरु बन गया। पर सवाल है दास बनना औखा बहुत है। दास बनने लई दूए की आदर करनी पैनी, दूए का हुक्म मनना पैना, झिड़कां भी खानियां पैणियां, बहुत कोई दास नूं सुनना पैंदा। दासा दासा भाव होना, निमरता वाला दास होना। और जिन्ने शुभ गुण आ दास विच प्रगट हो जाते हैं। बाबा गुरमुख सिंह जी महाराज कार सेवा वालिਆਂ ਨੂੰ कहा कि जिन्हों दास कहा उस तरह का कोई अज प्रेमी है, वो दास के दर्शन करा दो। महापुरुष खमोश रहे, बचन का उत्तर जुगती ना देंदे हैं। बाबा झंडा सिंह जी, धन धन बाबा गुरमुख सिंह जी महाराज, उन्होंने चरण सेवक सन। अपने पवित्र हस्त कमलों ने चिट्ठी लिखी दास को। भाई झंडा सिंह जी मुक्तसर साहब शहीदों के स्थान का लैंडर पैना, इतना लोहा, इतना ही बजरी के ट्रक, इतना रेता, इतना सीमेंट चाहिए, इतनिया संगतां वास्ते तैयार होया लंगर चाहिए। ये वचन लेके दस्ती सेवादार को पत्रिका भेज दी। धन धन बाबा गुरमुख सिंह जी महाराज ने बाबा झंडा सिंह जी नूं दास पत्रिका मिल गई, पढ़ गई। दास जिहड़ा ਉਹਦੇ को अड़ीक नहीं होंगी, उदों ही तुर पैंदा, हर वेले तैयार होंदा। नौकर तैयार होंदा टाइम ना, नौकर नूं रेस्ट है, छुट्टी है, तनख्वाह है। दास नूं कोई तनख्वाह नहीं होंदी, कोई छुट्टी नहीं होंदी, कोई आराम नहीं होंदा। जदों आवाज मारो जी हजूर हाजर, ये सेवक सेवक को आराम तो है ही नहीं। आराम दे उरे एड़ा लाइए आराम बन गया, हा लाइए आराम बन गया, उत्ते तो आराम ही आराम है। पर दूजी गल ही उसे वेले तैयारियां आरंभ हो गई। बहुत छेती सारा कुछ तैयार करके निश्चित समा जो हुक्म सी उहदे मुताबिक श्री मुक्तसर साहब धन धन बाबा गुरमुख सिंह जी महाराज के चरणों में भाई पहुँच गए। नमस्कार की आ भी झंडिया किवें महाराज आप जी का देखती परवाना हुक्म गया सी, जो हुक्म सी सेवक ने उहदे मुताबिक समग्री आप जी के चरणों में हाजिर की। वो वधू झंडिया तैनूं किन हुक्म भेजा, तू हुण बहुत बड़ा दाता बन गया, इत्थे अगे कोई चीज़ नहीं सी, तू सानूं दस दा कि मेरी समर्था बहुत है, जा जिमें आया इवें सब कुछ लैके मुड़ जा। नाल दे सेवा ने कहा महाराज तुहाडी जेब विच वो चिट्ठी है जो धन धन बाबा गुरमुख सिंह जी महाराज ने अपनी मुबारक हस्त कमलों नाल लिखी, शायद पहली बारी लिखी हो, अज तू पहला ना लिखी हो। वो चिट्ठी दिखाओ बाबा जी, तुसीं आपे ही लिखती हुक्म भेजा, हुण मैनूं मुड़ी जांदे। कहंदे नहीं, ये झंडा महाराज बहुत बुद्धू है, इनू कोई अकल नहीं, इनू समात दो। कहंदे जा लौट जा, तू समात दे लै। उस तरह सब कुछ लैके वापस मुड़ गया, कोई हीर हुजत नहीं की। एक हैगा तर्कवादियों का मत, एक हैगा श्रद्धालु प्रेमियां नितनेमियां का मत। तुसीं देखो असीं किधर जाना, तर्कवादियों वाल जाना, नुकता चीनियां वाल जाना, नास्तिकां वाल,
अकिरत कण निंदक ते दवाजरे लोग, गुरु द्रोही लोग, गुरु दे वचनां ते शंका करन वाले लोग, उधर तुरना इन्हां लोकां दे मार्ग ते चलना। ये फैसला तुहाडे कोल उस तरह पिछे मुड़ना। अज आउंदे ते असीं उसे वेले बाबा गुरमन सिंह नाल बतंडाबाद शुरू कर देना, आपे जो हुक्म चाड़ के भेजा आपे मुड़ी जाना। उस तरह ही ये झंडा बुद्धू है जी, इनू अकल नहीं कोई। महाराज समत बख्श, समत वास्ते तुहाडे चरणा च जे समत हुंदी असीं आउंदे क्यों, किरपा करो। उस तरह मुड़ गया। बाद च ताड़ी मारी धन धन बाबा गुरमुख सिंह महाराज, जिन्हें पूछा सी महाराज कि दास किहो जिहा हुंदा, कहंदे देख लिया दास, देख लिया दास, इनू कहंदे दास। असीं खुद चिट्ठी लिखी है, उहदी जेब विच मोहरे कोई दलीलबाजी कीती नहीं। गज के बोलो दासा भाव, ये साडे को गवाचदा जा रहा। माता पिता का कोई दास बनने लई चाह इक्को ही अखर पढ़ लिया। असीं जी गुरु ग्रंथ साहब तो बिना किसी नहीं मनते। गुरु ग्रंथ साहब जो मनण लई कहंदा वो भी मान लो, ना मनो गुरु ग्रंथ साहब तो बिना। पर यह भी तो कोई गल मनण लई कह रहा, गुरु ग्रंथ साहब मनण लई कुछ कह रहा, किसी को मनो उधर नहीं ध्यान दे रहा। जिहड़ा अपनी मां नूं नहीं मानता, प्यो नूं नहीं मानता, वो गुरु ग्रंथ साहब कितों मान लूगा। जिन जन्म दिता, किन्ने जफर जाल के तैनूं पालिया पढ़ाया लिखाया, की कुछ किया, नौकरियां चाकरियां घर घट बना के तैनूं दिता, आप किन्ने कष्टां का जीवन गुजारिया। पर असीं कित्थे पहुँच गए। आनंदपुर साहब बिजली के महकमे च एक SDO सी हरिजन मोची से जुतियां गंढ के गुजारा करता। उस सज्जन ने अपने पुत नूं पढ़ाया, वो बिजली SDO बन गया। पिता उन्होंने मिलने वास्ते गया, स्नेहा भेजा, कर्मचारी तेरे पिता जी मिलना आए, नाम दस्या, कहता मेरा तो पिता नहीं है, झूठ बोला। वो कहते जी, वो कहते झूठ बोला, तू मेरा पिता ही नहीं। उसने अखा तो अथरू डिग पाए। मैं मोची सी, दुकान खरीदी पिपल थले रह के जुतियां गंढ गंढ के किन्नियां मेहनतां नाल इहनूं पालिया पढ़ाया, इत्थे पहुंचाया। वो कुर्सी ते बैठा SDO बन गया। वो कहंदा जे सामने प्यो आया, कहणगे दा प्यो किहो जिहा। वो मिलने वास्ते तैयार नहीं प्यो। कि गुरु ग्रंथ साहब कहंदे इहो जिहा उपदेश, प्यो का सत्कार ना करो, माता का सत्कार ना करो, बड़े भरा का सत्कार ना करो, सस सहुरे का गृहस्थी सत्कार ना कर, किसी विद्वान का सत्कार सेवा ना करो, आए गए परौने धरौने की सेवा सत्कार ना करो, गुरु की संगत का जां होर कोई भी इंसानी तौर पर आ जाता उसका सत्कार ना करो। बस एक अखर सिख लिया, असीं गुरु ग्रंथ साहब तो बिना किसी नूं मनदे नहीं। गुरु ग्रंथ साहब की कह रहा, कबीर पुंगरा राम अल्लाह का सब गुर पीर हमारे। बिच दुनिया सेब कमाई है, तां दरगह है बैसन पाई। गुरु साहब की कह रहे, असीं की कर रहे? ये सिर्फ अखर की आड़ विच असीं सेवा तो कन्नी कतराउने, सत्कार प्यार तो कन्नी कतराउने, किसी नूं जी आया स्वागत करन तो कन्नी कतराउने, किते साधु संत नूं लिखण तो झुकण तो कन्नी कतराउने। ये हैंकड़ दे किले साडियां धौणां च इहो जिहे ठुक गए, असीं गुरु ग्रंथ साहब के आदर्श तो करोड़ां को दूर निकलना है। शायद तुहानूं नेड़े होण लई समा मिलेगा ना इस जिंदगी विच। गज के गुरु दासा भाव, धन गुरु अमरदास जी महाराज गद्दी के मालक हैं। गुरु नानक पातशाह की गद्दी दातू ते दासू
देख लो आके दातू जी ने महाराज की बखी विच लत मारी, फजूर गरीब नवाज मथे पर ने धरती के डिग पर, उठ के चरण फड़ लै, दाड़ी ने चरण झाड़े, तुसी बहुत चंगा किया। आम मेरे सतगुरु के साहिबजादे हो, मैं गद्दी ते बैठा रहा, तुहाडा उठ के सत्कार ना किया, इनू ये सज़ा मिलनी चाहिए सी। ये सज़ा गुरु अंश तो बिना कोई दे भी नहीं सकता, मैनू माफ कर। गल जो महाराज बहुत ही मशक्कत करके मेरे हड्ड बुढ़ापा भी बड़े कठोर हो गया, तुहाडे साहिबजादा दी चरण कोमल सी सट लग गई होगी। आज हम असीं आपको अपने जीवन नाल तोल के वेखीए कि असीं कित्थे खलोते हैं। हैंकड़ ही हैंकड़ भले रहे। इसे करके अज साडी सिक्खी का अधो पतन हो रहा, दासा भाव छड़ दिता। दासा ये भगती है भाई, बहुत बड़ी भगती है। दास होना, निमरता होना, साधपन, मित्र वांग किसी के वफादार होना। मित्र जिन्हें मित्र का वफादार होंदा, लक्ष्मण ने रामचंद्र जी ना भरा अपने विच मित्रता निभाई है, सुग्रीव ने मित्रता निभाई, हनुमान जी ने मित्रता निभाई, अंगद ने मित्रता निभाई। दुनिया की बहुत बड़ी मिसाल है मित्रता निभाई, वचन की पालना की। अज उन्होंने लोगों के नाम से इतिहास चल रहा है। मित्रता निभानी, धन गुरु नानक साहब जी ने जिन्हें हुक्म किया, सज्जन सही नाल में चलदियां नाल चलन, जिथे लेखा मंगीए तिथे खड़े दसान। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कश्मीरी पंडित आए, नवाया कि नहीं पूरा। तेग बहादुर सी किरिया करी ना किनहू, हाँ गलां बातां ना नहीं टरकाया, करके दिखाया। ऐसी देशवासियों ने मित्रता निभाई। सखपन, सख सखा कहते तां इन्ना सखी होवे। असीं कई वारी कहने सिखां विच त्याग दा मार्ग नहीं है। जिन्ना सिख त्याग के मार्ग से तुरया, दुनिया का कोई मनुष्य तुर ही नहीं सकता। सिख ने तो अपने सरवंश का भी त्याग करता, सब कुछ त्याग करता। पूजा प्राण सेवक जी सेवा, इन विद साहिब रावत रहे। इन्हें तो गंढा खाना त्याग कर, मसलों की दाल खानी त्याग दी, बताऊं खाने त्याग के, लसन त्याग कर। ये त्याग कर, त्याग का यह सब कुछ कोल होंदिया होया फिर दूए उत्ते दात अपना बुला लेना। गज के बोलो। सतगुरु जी ने तो बहुत त्यागी बनाया। इन्होंने त्यागियां दियां मिसालां तो किते मिल ही नहीं सकदियां, जिहो जिहा त्याग ही नहीं करके दिखाया, बराग जिहो जिहा ही नहीं करके विखाया। सो साध समझी दासा सखपन बंदना। नमस्कार, नमस्कार करनी बहुत बड़ा पुण्य है। नमस्कार करने कुछ स्थान हैं, कुछ नहीं हैं। माता नूं नमस्कार करनी बहुत पुण्य है, पिता नूं नमस्कार करनी, बड़े भरा नूं, किसी विद्वान नूं, बंदगी वाले महापुरुष नूं। हिंदू मत विच कुल दा विरोध है, साडे मत विच गुरु महाराज का वजीर ग्रंथी सिंह है, जिहड़ा सानूं हर वेले सेध दिंदा। साडे सारे कारजां विच विद्वान है। जे देश का राजा धर्मी, तुसीं गृहस्थी जीवन वाले हो, सस सहुरा है, नमस्कार के स्थान है। गुरु है, इष्ट है, गुरु का निशान, गुरु का धाम, ये नमस्कार करने के स्थान है। नमस्कार किथे नहीं करनी। असीं कोई मान लिया जी, असीं गुरु ग्रंथ साहब तो बिना किसी मत्था ही नहीं टेकते,
जिथे लोड़ पैंदी है कई बार गधे नूं भी बाप कहंदे देखे गज के बोलो। हंकारी नूं, जालम नूं, दुराचारी नूं, गुरु के निंदक नूं, अकिरत धन नूं, दवाजरे नूं, गुरु द्रोही नूं और साध संग जी ऐसे पुरुषां नूं मथा नहीं टेकना। असीं कोई गल फड़ लई, असीं गुरु ग्रंथ साहिब तो बिना किसी नूं मथा ही नहीं टेकदे। गुरु ग्रंथ साहिब कह रहा है कि जितना भी विश्व है ये सारा परमेश्वर का स्वरूप है। मत्था टेकदा कौन है, टकाउंदा कौन है। जे कहिए पंज तत्त जिन्हां के झुकदे उहदे भी पंज तत्त है। जे कहिए आत्मा उहदे च भी होए आत्मा, ना कोई टेकण वाला या ना कोई टकाउण वाला। ये साडे मन की दवैश है। इंसानी तौर पर कोई सत्कार के फर्ज बनते। हुण छोटा बच्चा है, उन्होंने माता पिता नूं नमस्कार करनी सिखावांगे, उन्हें निमरता होगी, उन्होंने दा हाथ उहदे सिर ते आ जाऊगा, पुत्र तू राजी हो, तैनूं रब विद्या दान देवे, तेरी लंबी आरजा होवे। जदों कि इहनूं मत्था टेकोगे तो चलो वो भी हाथ जोड़ के सिर झुका के तुहाडे नूं खड़ी हो। जिन्हों मत्था टेकदे चाहे किड्डा बड़ा व्यक्ति भी हो। दासा साखपन, साखपन ते बंदना, नमस्कार करनी, नमस्कार करनी बहुत बड़ा पुण्य। कर अंजलि पुण्य वड्डा है, कर डंडौत पुण्य वड्डा है। नमस्कार कर शीस नवाया गिर परत बहु पापन की कोट, तांते शीस नवाया लगे न जम की चोट। सिर ते पंड चुकी हुए सिर ते घालू आपे टेको। नमस्कार करनी। सलाहदीन काजी सतगुरां दे पास आया सी, महाराज तुहाडे सिख तुहानूं नमस्कार करदे। आप जी प्रतख तौर पर जो कोई दिंदे नज़र नहीं आ रहे, खुश बड़े हो जाते। उस वेले महाराज ने खजानची को मोहर मंगाई, कहंदे देखो अखर पुठे। उस वेले ठप्पा ला, कहंदे हुण कहंदे सीधे। कहंदे भाई जदों गुरु घर चौंदे जिन्हां दे पुठे अखर है नमस्कार करना सीधे हो जाए, जिन्हां दे सीधे है उन्हां नूं गुरु नानक पातशाह की होर बरकत मिल जाती। ये निमरता का प्रतीक, साडे देश की सभ्यता। गोरियां च गुडबाई कह के साथ बंदे पर गल के बोलो। इन्हां च जी शब्द तो है ही नहीं, सार कह देंगे वध तो वध होर की कहणगे। ये तो भाई साडी सभ्यता है जिहदे विच ये चीज़ां, पर असीं रीस दी घड़ीस उस पासे तुरदे हैं। ना तुसीं अपना आप रखिया, ना तो तुम गोरे बन गए। अपना आप संभाल लीए यही बहुत। तुसीं गुरसिੱਖੀ सिद्धांतां नूं साਂਭ के रखोगे, तुहाडे अल वेखणगे एक गोरे की फरिश्ते भी तुहानूं नमस्कार करनगे। अज साड़ियां कमजोरियां सातों लोगों को निशागर कर रही। दासा सतपन बंधन भगत निवेदन जान। निवेदन भगती की जो सतगुरु नानक ने वंड खाण की मर्यादा सानूं दसी है। हर चीज़ गुरु नूं संगत नूं आए अतिथि नूं अर्पण करके जिहड़ा भोजन छकना यही निवेदन भगती। दूए नूं उही छका सकदा जिहड़ा दूसरे च आत्मा गया। सिर्फ कितना त्यागी भोजन आउंदा महाराज भोजन छको, वस्त्र आउंदा लो महाराज तुसीं सुख लो। हर पासे दूए नूं सुख देण दी चढ़दी कला की कामना करनी। ये 9 प्रकार की भगती है। जदों ये 9 अंग साडे अंदर पैदा हो जाण फिर वो मनुष्य भगत बनता। जिहड़ा भगत पुरुष है उन्होंने गुरबाणी ने अपने बराबर सन्मान दिता। चाहे वो फरीद है, चाहे नामदेव है, चाहे सदना है, चाहे सैन है, चाहे रविदास है। जिहदे अंदर ये भगती के 9 अंग आ गए, भगत बन गया, श्रद्धा भगती वाला पक्ष ग्रहण कर लिया। गुरु साहब ने भगवान ने भगत नूं अपने बराबर बहालिया। किसी राजनीतिक नूं बहालिया, किसी लीडर नूं बहालिया होवे,
गज के बोलो। सो साध संगत जीओ, सतगुरु जी ने बड़ी कृपालता की। ये पवित्र समा आप जी को बख्शिश होया। रागी सिंह आते हैं, संत सिंह जी मस्कीन साहब आए, तुसी वचन कर लिया पौंड 2 पौंड 4 पौंड रख लिया, पर ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਪੌਂਡ ਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੌਕਰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਭਗਤਾ ਉਹ ਅਨਚਰ ਵਤ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਤੇ ਕਰਤ ਨਾ ਆਦਰ ਸਨਮਾਨ। ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਨਚਰ ਮੈਨੇ ਨੌਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਆ ਕਿਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਰਕਾਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਪੀਨੇ ਆ ਉਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੋਜ਼ ਲੱਗ ਗਈ। ਨਾਈ ਨੂੰ ਹਜਾਮਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਉਹ ਵੀ 2-4 ਰੋਜ਼ ਵਾ ਜਾਣਗੇ। ਆ ਬੀਬੀਆਂ ਫੈਸ਼ਨ ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਦਵਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਅਗਰ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਛੱਡਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਦਾਜਾਂ ਦਹੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਡਾਂਸ ਨਾਚ ਮੁਜਰਿਆਂ ਭੰਗੜਿਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਵਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਰੈਡੂਏ ਸਿੰਗਰਾਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣੇ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦੇ, ਟਿਕਟਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ 3 ਦਿਨ ਭਾਈ ਰੌਲਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਬਈ ਲਾਲਚੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਇਹ ਫਤਵਾ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਰਾਗੀਆਂ ਤੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਲਈ, ਜੇ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਚੰਗੇ ਲੀੜੇ ਪਾ ਲੈਣ, ਲੈ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਲੈਣ ਆਇਓ, ਰਾਗੀ ਲੈਣ ਆਇਓ। ਜੇ ਸੈਂਟ ਲਾ ਲਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਗੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਭਾਈ, ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਾਂ ਦੀ ਪੂਛ ਨੂੰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ? ਸ਼ਰਾਬੀ ਕੁਆਬੀ ਬੰਦੇ ਸੈਂਟ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜਿਹਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਕਰਨਾ ਉਹਨੀ ਤਾਲੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਹੋ ਕੇ ਸਗੰਧੀ ਵਾਲਾ ਦਰਬ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਲਈ, ਰਾਗੀਆਂ ਲਈ, ਗਿਆਨੀਆਂ ਲਈ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋਗੇ, ਕੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰੋਗੇ? ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ 3 ਲੋਕਾਂ 14 ਭਵਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੋਪਾਲੇ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹੀ ਦੇ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਤੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਕਾਲਪ ਆ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦੇਖੋ ਵਿਚਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਪਾਠ ਕਥਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਟੇਕ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਈਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਉਂਗਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਆਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ, ਅਭਿਆਸੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਆਪ ਜਪਦੇ ਨਹੀਂ।
ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਿਆਗ ਵਿਰਾਗ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਸੁਣਾਏ, ਔਰ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿਤਨਾ ਕੀਮਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ 10ਵੀਂ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਨੰਨ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀਵਾਨ ਗੋਇਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਖਾਲਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਮ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਲਿਪੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੈ, ਫਾਰਸੀ ਉਹਨੀ ਫਾਰਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਬੋਲੀ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਵੰਡੀ ਤੇ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਦੇ ਲੋ ਕਿਤਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਗਾਈ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਤਖਾਲਸ ਵੀ ਮਸਕੀਨ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਕੀਨੀ ਪਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਰਤਦੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਭਾਈ ਚੜਾਉਣੇ ਆ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਗੋਲਕ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਾਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਭਾਈ ਅੱਜ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। 100 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, 10,000 ਬੰਦੇ 'ਚੋਂ ਵਿਦਵਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, 1 ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, 1 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕੌਮ ਮਹਾਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਰ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਬਚਨ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਾਂ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਵਿਦਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਦੂਏ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਭੰਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਪਰ ਦਾਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਲੜੀ ਛੱਡੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੜੀ ਆਰੰਭ ਕਰ, ਸ਼ਰੰਖਲਾ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਿਆਣਪ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੀ ਨੁਕਤਾ ਚੀਨੀ ਰਸਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਾ ਭਰੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾਹੀ ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ, ਕਰਨ ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਤਿਨ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨਰ ਕੇ ਘੋਰ ਭਵਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੁਦਰਤੀ ਠਾਠ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਦੂਰ ਬੈਠੇ। ਐਤਵਾਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੰਤ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਦਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਭਾਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਨ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਆਏ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਲਣਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਵੀ ਰਲਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਦੁਬਲਾ ਜਿਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲਾਣਾ ਬਾਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਬਣ ਜਾਓ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਓ, ਫਰਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਇੰਜਣ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਵੀ ਹੈ, ਰਲ ਕੇ ਇੰਜਣ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਸਾਈਕਲ 'ਚ ਬਾਲ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ 2.5-3 ਕੁਇੰਟਲ ਭਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਬਾਲ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਭਾਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਚੁੱਕਣਾ ਪਊ।
छोटी चीज़ कोई नहीं होती, हर चीज़ अपने स्थान से बड़ी महान होती है जे समझ लिया। इस करके भाई आप सारे गुरु नानक की फुलवाड़ी के फुल हैं। जिन्नी जिन्नी सगंधी सतगुरु ने भरी है उन्नी है। दरगंधी वाला भाव मिटो, शुभ गुणों की सगंधी पैदा करो। फुल होगा तो नासा वल नूं आऊगा, जे बदबो होऊ तो चाके रूड़ी ते सुटांगे। इस तरह जिहड़ा मनुष्य अपने शुभ गुणों की सगंधी पैदा करता, उसका सत्कार प्यार कुदरती बढ़ जाता। जिहदे औगुणां की दरगंधी आ जाती, उन्होंने हर एक भाई दुरो दुरो करन लग जाता। बस इन्नी गल ग्रहण कर लो, सांझ खरीद्या गुणा केरी, छोड़ अगन चली जाए। पहरे पतंबर कार अडंबर, अपना पिड़ मलीए। जिथे जाए बहिए, भला कहिए झोल अमृत पीजै। गुणा का होवे बासला, खट बास बीज। सो इन्नियां बेनतियां करो, प्रवान करो। सतगुरु जी जिन्नी समत देंदे बेनती करते हैं, जिन्नी होर समत देंगे वो तुहाडे चरणों बेनती करांगे। सो ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहब जी का, सारिया संगतां दा, रागी सिंहां दा, अपने बच्चे उन्होंने साहब सारियां दा, ग्रंथी सिंहां दा, बहुत बहुत प्रबंधकों का भी संगतां दा भी धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर काल मूरत अयोनि सेघं गुरु प्रसाद। हे प्राणनाथ गोविंदे कृपा निधान, जगत गुरु हे संसार ताप हरणे। करुणा में सब दुख हारो। हे शरण जो दयाल दीनानाथ, माया करो। शरीर सवस्तु क्षीण समय, सिमरंत नानके। राम दामोदर माधवे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु लोग साध संगत जीओ, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के एक अमर वाक तो दास ने कल विचार आरंभ किए सन। रे मन ऐसो कर सन्यासा, मन से सघन सवै कर समझो, मन ही माहे उदासा। उस वाक दियां पहलियां पंक्तियां धन गुरु नानक देव जी महाराज दियां दो पंक्तियां। आसा विच अत दुख घना, मनमुख चित लाया। गुरुमुख भय निराश, सुख फल पाया। जितने चिर तक मनुख इस जीवन तो निराश नहीं होया, एक परम जीवन की तलाश नहीं करेगा। जिन्ने चिर तक मनुख इस संसार तो निराश नहीं होया, उदास नहीं होया, ये निरंकार की तलाश नहीं करेगा, कतई नहीं करेगा। जितने चिर तक मनुख पदार्थों तो निराश नहीं होया, उदास नहीं होया, परमात्मा की तलाश नहीं करेगा। अनुभवी पुरुषों की पकड़ विच जो ये नुकता आया है,
धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के वाक को आधार बना के मैं आप जी के सामने रख रहा। त्याग नहीं, निराश उदास, ये संसार मेरी लोड़ां की पूर्ति कर सकता है, मैनू आनंद नहीं दे सकता। ये पदार्थ मेरी लोड़ां की पूर्ति कर सकते हैं, मैनू परम आनंद नहीं दे सकता। ये परिवार और संसार का होर साजो समान मेरिया जीवन दियां लोड़ां नूं पूरा कर सकते हैं, जीवन नूं सफल नहीं कर सकता। इस गल नूं समझ के जद मनुख सुख की आशा, आनंद की आशा संसार तो छोड़ देंदा है, पदार्थां तो छोड़ देंदा है, इस जीवन तो छोड़ देंदा है, उन्होंने कहने निराश हो गया, उदास हो गया। उदास कौन होता है? जो निराश होता है। उदास ते निराश का मतलब है हुण सुख की आशा इन्हें संसार, परिवार, पदार्थां तो छोड़ दी है। उदास कहने ने अपने कोल आसन, उद आसन, हुण अपने कोल आके टिक गया है। हर मनुख ऐसा है, इनू बैठने वास्ते, जीण वास्ते दूजा, तीजा, चौथा, पंजवां चाहिए। मनुख अपने नाल नहीं बैठ सकता। उद आसन अपने विच आसन, हुण अपने नेड़े। इस वास्ते अनुभवी पुरुष कहते हैं, एक पति जितना पत्नी के नेड़े है, अपने नेड़े बिल्कुल नहीं है। पत्नी बारे सब कुछ जानता, उहदियां कमजोरियां नूं, उहदे गुणां नूं, उहदे अवगुणां नूं, उहदे सुभाव नूं सब कुछ जानता है, अपने बारे कख भी नहीं जानता। एक पत्नी भी पति के नेड़े है, उहदे सुभाव नूं, उहदियां कमजोरियां नूं, उहदियां मजबूरियां नूं, उहदे गुणां नूं, उहदे अवगुणां नूं सब जानती है, अपने बारे कख भी नहीं जानती, क्योंकि अपने तो दूर। एक विरा जितना विरा के नेड़े है, अपने नेड़े नहीं है। एक मित्र जितना मित्र के नेड़े, अपने नेड़े नहीं है। मित्र बारे सब कुछ जानता, अपने बारे कख भी नहीं जानता। हर मनुष्य अपने तो दूर है। कोई दूजा तीजा चाहिए, जब कोई भी ना हो तो अखबार चाहिए, रेडियो चाहिए, टीवी चाहिए। मनुष्य अपने नाल नहीं बैठ सकता, दूजे नाल। जो अपने नाल बैठे उन्होंने कहने उदासी है। भगतां विचों बहुत वड्डा भगत भाई गुरदास राजा जनक नूं कहते हैं, भगत वड्डा राजा जनक है, क्यों? गुरमुख माया विच उदासी। इतनी धन संपदा राज पाठ होंदे आया, सब कुछ तो निराश है ते उदास है, अपने नेड़े। उदास होना धार्मिक दुनिया विच प्रवेश करने का पहला साधन है। अगर यही नहीं तो फिर मुश्किल है। संगत विच बैठे, अपने नेड़े नहीं है, ध्यान पता नहीं कितने कितने अपने नेड़े वही होंदा है, उदास वही होंदा है जो सब कुछ तो निराश है। ये भी महस करो ते निराश कौन होंदा है? जो समझ लेंदा है ये संसार, ये परिवार, ये पदार्थ मेरी जिंदगी दियां लोड़ां की पूर्ति कर सकते हैं, मेरे जीवन को सफल नहीं कर सकते। जिहड़ा ये आखे ये जगत ही सब कुछ है, परिवार ही सब कुछ है, ये पदार्थ ही सब कुछ है, तो पूरी दुनिया निरंकार कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। कि मनुष्य संसार तो निराश नहीं है, इस वास्ते उदास भी नहीं है। ये मनुष्य पदार्थों तो निराश नहीं है, इस वास्ते उदास भी नहीं है। निराश होना
उदास होना धार्मिक दुनिया की साधना का पहला कर्म है, पहली अवस्था है। थोड़े विचों जिहड़े कुछ अभ्यास करते होंगे जरूर इसकी पकड़ आई होनी। जब कोई कहता है की करिए मन टिकता ही नहीं, मन भटकता है, तो भटकता असर करके भटकता, उस तो सुख मिल सकता है, उस तो सुख मिल सकता है, उस तो सुख मिल सकता है, उस तो मसला हल हो सकता है, उस तो मसला हल हो सकता है। तो मन चारों दिशावां विच भटकता है। जब समझ आ जाती है कोई भी वक्ती लोड़ की पूर्ति कर सकता है, मेरे जीवन को सफल नहीं कर सकता। ना पुत्र कर सकता है, ना मित्र कर सकता है, ना पत्नी कर सकती है, ना पति कर सकता है, ना पलाद कर सकते हैं, ना कोई रुतबा के अहदा कर सकता है। फिर मनुख सब कुछ तो निराश हो जाता है, उदास हो जाता है। फिर उदा अपने विच वासा हो जाता है, उन्होंने कहते हैं सन्यासी। इतने सन्यास्त हो गया। धर्म की शिखर अवस्था की है सन्यास। सन्यास के आखिरी अर्थ की ने सुन विच आसन हो गया, हुण निर्विचार हो गया। सुन समाद अनहद तैनाद, कहन न जाई अचरज विस्माद। उस सुन समाद विच, उस निर्विचार अवस्था विच निरंकार प्रगट हो जाता है। महाराज कहने फिर वो मैं बयान नहीं कर सकता, वो अवस्था कही नहीं जा सकती, वो अकथ है। इसे धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहने रे मन सन्यासी ते मन ने बनना है, ते संसार नाल आसा मन जोड़ना है। धर्म की साधना मन की साधना है, मन की साधना है। और ये साधना कोई कोई करता है। इनू इंज गिणया गया है, अभी ध्यान नाल सुनना। हमने महापुरखा ने सही गिनती आप जी के सामने रखी। 10,000 के करीब सतसंगी किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे विच बैठे हो या चर्च विच बैठे हो, एक जग्यासू होता है। जग्यासू का मतलब जो जाग गया, जो समझ आ गया, एक होता है। वो 10,000 नहीं होता। 10,000 के करीब पुरुष मंदिर विच, मस्जिद विच, गुरुद्वारे विच, चर्च विच, बौद्ध मठ विच, किसी भी सत्संग विच बैठे हो, एक जग्यासू होंदा, एक जागया होया मनुख होंदा है। जागे जग्यासू तो मुराद जिन्होंने समझ आ गई है, धर्म के प्रति जागे है। पशु वजे परिवार के प्रति भी नहीं जागया, उन्होंने ये भी नहीं पता ये चाचा है, ताया है, मामा है, भाणजा है, ये बहन है, ये माँ है, दादी है, नानी है, ये समझ नहीं है। पशु अजे परिवार के प्रति भी नहीं जागया। पशु अजे कीमती धातुओं के प्रति भी नहीं जागया, उन्होंने ये भी नहीं पता है सोना है, हीरा है, चांदी है, नहीं पता। इस वास्ते मैं अक्सर अर्ज करता हूँ, जो मेरी समझ देश नहीं है, नहीं है, नहीं है। होवेगा परमात्मा, जर्रे जर्रे च होवेगा, रोम रोम दे च होवेगा, समझ देश नहीं है तो नहीं है। जैसे परिवार के पशुओं के भी हैं, नानके दादके सौरे हैं, पर समझ नहीं है। परिवार दे होंदे आया पशु परिवार तो बिना जीवदा है, क्यों? समझ नहीं है, समझ नहीं। निरंकार दे होंदे आया मनुख निरंकार तो बिना जीवदा है, कारण समझ नहीं है, समझ नहीं है। परिवार के पशुओं का भी है, पर समझ नहीं है। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਮਾਮੇ ਭਾਣਜੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, नहीं है।
ਉਹਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਸ਼ੂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। परमात्मा परम आनंद दे आनंद है, एक कल कलेश दे जी है। परमात्मा निर्वैर है, ते वैर विरोध दे जी है। परमात्मा समदृष्ट है, ते वितरण दे जी है। परमात्मा ते प्रेम की मूर्ति है, ते नफरत दे जी है, घृणा दे जी है। मनुख की तर्जे जिंदगी दसती पई है। परमात्मा के होंदे होया मनुख परमात्मा तो बिना जी है। कारण समझ नहीं, समझ नहीं। जिसनों किधरे समझ आ जाती है, कहते ने